Good evening, everyone. Today we are going to start a new chapter in accountancy, and the name of this chapter is Dissolution of Partnership Form. Friends, uh, in this chapter, basically we are going to learn how to dissolve partnership form. Means हम partnership firm को किस तरह से dissolve करेंगे. Friends, what do you mean by dissolution? Dissolution का मतलब क्या होता है? Dissolution means partnership business comes to an end, means end of partnership, right? Dissolution means end of existence. Yes or no? अभी तक हम अकाउंटेंसी में ऑलरेडी दो चैप्टर गो थ्रू कर चुके हैं फ्रेंड्स. एक चैप्टर नंबर 3, गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, and the another one is chapter number 4, reconstruction form. Friends, this one is the chapter number 7, and the name of chapter is dissolution of partnership firm, right? And in this chapter, how to dissolve a partnership firm, हम partnership firm को किस तरह से dissolve करेंगे, वो हमें इस chapter में पढ़ना है, right? Now please share the next page so I can explain some important terminologies. Now you can see on your screen, first of all we are going to discuss a meaning of dissolution. What do you mean by dissolution? Friends, dissolution means end of existence. End of existence. Friends, dissolution का मतलब क्या होता है? किसी भी बिजनेस का एंड होना, राइट? एंड ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. यहाँ पे पर्टिकुलर हम किसके एंड होने की बात कर रहे हैं, किसका शट डाउन होने की बात कर रहे हैं, किसका बिजनेस क्लोज होने की बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम पर्टिकुलरली पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, राइट? Basically, here we are going to study two things. Number one, partnership, and number two, partnership firm. Mainly in this chapter, there are two things are very important. First is dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. आप सब अपने स्क्रीन पे सेकंड पॉइंट ध्यान से रीड करो फ्रेंड्स. We are going to in the context of dissolution of partnership and partnership firm, right? See, both are different. Dissolution of partnership and dissolution of partnership firm, both the things are little bit different. दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रेंड्स. क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं. फर्स्ट आई विल रीड all the points one by one. Your third point is when a partnership firm closes down its business on a permanent basis, it is known as dissolution of partnership firm. When any partnership business, when it is closed down, when it closed down the business, कोई भी पार्टनरशिप फर्म जब अपना बिजनेस परमानेंट क्लोज कर देता है, परमानेंट मींस हमेशा के लिए, जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस क्लोज कर देता है, सो दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट? व्हेन अ पार्टनरशिप बिजनेस क्लोज डाउन, फ्रेंड्स, जब पार्टनरशिप बिजनेस परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, सो बट ऑब्वियस है उस पार्टनरशिप बिजनेस के जितनी भी एक्टिविटीज है, मींस जितने भी बिजनेसेस है उस पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो सारे बिजनेस क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्लोज हो जाएंगे. आई मीन ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द बिजनेस विल बी क्लोज्ड एंड पार्टनरशिप इज फुल्ली शट डाउन. यस और नो? सी, जब कभी भी कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है फ्रेंड्स, कभी भी जब कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगा, सो इट मींस नाउ पार्टनरशिप फर्म दे कैन नॉट वांट टू डू देयर बिजनेस. अब वो अपना बिजनेस परमानेंटली शट डाउन कर रहे हैं एंड नाउ दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू देयर बिजनेस. अब वो अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहते, राइट? इट मींस नाउ दे कैन क्लोज ऑल देयर बुक्स ऑफ अकाउंट. अब वो अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं because now they do not want to continue their business. So friends, when partnership firm
is to be dissolved. जब कोई भी partnership firm dissolve होता है, so all the activities of the partnership firm will be totally closed on permanent basis. हमेशा के लिए business close हो जाता है और उस business के जितने भी books of account है वो सारे हमेशा के लिए friends क्या हो जाते हैं, close. And second point is friends, dissolution of partnership. दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है फ्रेंड्स. मैंने आपको अभी जो समझाया वो सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म था. अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है. मींस द रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स will be comes to an end. The relationship between the partners is to be comes to an end, and the new relation will be established, right? So this is the meaning of dissolution of partnership, right? Now you can see on next page, आप next page पे देख सकते हो actual में meaning क्या है dissolution of partnership का. आप देख सकते हो friends यहाँ पे dissolution of partnership. See, यहाँ पे एक्चुअली में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दिया हुआ है. मैं आपको पार्टनरशिप समझाता हूँ. फ्रेंड्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म विल बी कंटिन्यू. फर्म कंटिन्यू है, पार्टनरशिप का एंड आ रहा है. बिजनेस कंटिन्यू है फ्रेंड्स, सिर्फ पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है वो स्पॉइल हो रहा है और किसी न किसी रीजन से पार्टनरशिप का एंड हो रहा है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप का एंड हो रहा है तो पार्टनरशिप बिजनेस भी खत्म हो जाएगा. दोनों के बीच में बहुत वास्ट डिफरेंस है दोस्तों. पार्टनरशिप बिजनेस का एंड होना और पार्टनरशिप का एंड होना, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है. व्हेन इफ आई से पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन, इट मींस कि बिजनेस बंद हो रहा है और अब वो बिजनेस आगे कंटिन्यू होने वाला नहीं है. एंड इफ आई से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट मींस द रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स, उस फर्म में जो पार्टनर्स है उनके बीच का रिलेशन खत्म हो रहा है बट बिजनेस अभी भी चालू है. मींस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स. सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स A, B and C. Now suppose A and B, both this partner, now they want to exist this partnership firm. वो ये partnership firm को अब छोड़ना चाहते हैं. The reason is we don't know what is the reason, but now they want to exist this partnership firm. So when A and B, when they go from this partnership, when this partnership firm, it means only C will remain in this partnership firm. जब A और B दोनों इस पार्टनरशिप फर्म को अलविदा कहेंगे, जब वो इस पार्टनरशिप फर्म से चले जाएंगे, इट मींस कि A, B और C के बीच के रिलेशन में क्या हो गया फ्रेंड्स, डिसोल्यूशन हो गया. मींस A, B और C, इन तीनों के बीच में जो पार्टनरशिप का रिश्ता था वो क्या हो गया फ्रेंड्स, टूट गया. और अब सिर्फ C इस पार्टनरशिप फर्म में बचा. और जैसा कि मैंने आप सबको समझाया था जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था गुडविल, कभी भी पार्टनरशिप फर्म में एक बंदा नहीं रह सकता. पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 बंदे की जरूरत है. सो नाउ व्हाट सी विल डू, सी क्या करेगा, नाउ सी इज लुकिंग फॉर द अनदर पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन हिज पार्टनरशिप फर्म. सो अब सी किसी एक पर्सन को या एक से ज्यादा पर्सन को अपने पार्टनरशिप फर्म में क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा. एंड वंस अगेन ही विल क्रिएट अ न्यू पार्टनरशिप firm. So it is called new partnership. It is called establishment of new partnership. Yes or no? So here what we are going to learn, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, कि एक पार्टनरशिप का एंड हो रहा है और दूसरा पार्टनरशिप रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है. राइट मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि पार्टनरशिप फॉर्म अगर बंद हो गया तो वो न्यूली एस्टैब्लिश नहीं हो सकता. बट पार्टनरशिप अगर एंड हो जाती है तो हम न्यू पार्टनर्स को इन्वॉल्व करके न्यू पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन
dissolution of partnership and dissolution of partnership form. Now you can see on your screen, आपके स्क्रीन पे जो दिया हुआ है, अब मैं वो आपको समझाता हूँ. आप देख सकते हो यहाँ पे रेड पेन से लिखा हुआ है dissolution of firm. As per section 39 of Indian Partnership Act, when all partners get separated through dissolution of firm, that brings end of their partnership, and it is known as dissolution of firm. जब कभी भी सारे पार्टनर्स एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाते हैं, मींस व्हेन ऑल पार्टनर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, it is called dissolution of partnership form. See friends, this definition is given under section 39 of Indian Partnership Act 1932. ये definition हमें section 39 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है कि जब कभी भी सारे पार्टनर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इट मींस इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. अब फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि हम डेफिनेशन क्या लिखें. सी फ्रेंड्स, हमें डेफिनेशन बहुत इजी लिखनी है. आपको ये डेफिनेशन बोर्ड की एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज dissolution of firm. आपको dissolution of firm में क्या लिखना है? When the partnership firm comes to an end, this is called dissolution of partnership firm. सिर्फ आपको इतनी definition लिखनी है. आप देख सकते हो यहाँ पे, when partnership is dissolved and closed down the firm, it is called dissolution of firm, right? जब कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म क्लोज होगा फ्रेंड्स, मींस जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा? जब कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म पूरी तरह से बंद हो जाएगा तो क्या होगा? पार्टनर्स अपने बिजनेस में जितने भी एसेट्स है, वो एसेट्स को क्या करेंगे? सेल करेंगे. वो मार्केट में अपने एसेट्स को रियलाइज करने का ट्राई करेंगे. मींस वो अपने एसेट्स को सोल्ड करेंगे, और एसेट्स को सोल्ड करने के बाद जो भी कैश वो रियलाइज करेंगे, उस कैश से वो अपने बिजनेस की लायबिलिटीज को पे करेंगे. एंड आफ्टर दैट व्हाटएवर अमाउंट इज टू बी रिमेनिंग, उस अमाउंट को पार्टनर्स अपने बीच में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. दिस इज द सिंपल फंडा ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. Once again I am repeating. मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. सपोज मैं हम सबका ही एग्जांपल लेता हूँ. सपोज आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है किसी दूसरे पर्सन के साथ, मींस यू आर डूइंग अ बिजनेस ऑन अ पार्टनरशिप, बट ड्यू टू सम रीजन योर पार्टनरशिप विल कम्स टू एन एंड. आपका पार्टनरशिप एंड हो रहा है और अब आपका बिजनेस खत्म हो गया. सो नाउ व्हाट यू विल डू? अब आप क्या करोगे फ्रेंड्स? अब आप आपके बिजनेस में जितने भी वैल्यूएबल असेट्स है, असेट्स इन द सेंस जो भी रॉ मटेरियल गुड्स है, जो भी प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टी को आप क्या करोगे? सेल करोगे. एंड उसको सेल करने के बाद जो भी कैश आप रियलाइज करोगे, उस कैश से आप अपनी सारी लायबिलिटीज क्या करोगे? पे करोगे. और अपनी लायबिलिटी पे करने के बाद जो भी फाइनली आपके पास पैसा बचता है, उस पैसे को आप अपने पार्टनर्स के साथ क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे. एंड आप अपना बिजनेस क्या करोगे? हमेशा के लिए शट डाउन करोगे. सो फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. क्लियर? आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू. को समझाऊं. सपोज इफ पार्टनरशिप फर्म इज टू बी सोल्ड, अगर पार्टनर्स मिल करके अपने फर्म को किसी कंपनी को सेल कर दे रहे हैं, सपोज इफ ऑल पार्टनर्स आर म्यूचुअली अंडरस्टूड एंड नाउ टू एनी कंपनी, वो किसी कंपनी को सेल कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. उसे भी हम क्या कहेंगे? डिसोल्यूशन नहीं कहेंगे फ्रेंड्स. बिकॉज आप एक चीज समझो कि पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप बिजनेस को किसी कंपनी के हवाले सौंप रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि पार्टनरशिप बिजनेस अब किस में कन्वर्ट होने वाला है? कंपनी में कन्वर्ट होने वाला है. यानी जब पार्टनरशिप बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट होगा तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा हमेशा के लिए. और
किसका एग्जिस्टेंस हो जाएगा? कंपनी का एग्जिस्टेंस हो जाएगा. यस और नो? एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? व्हेन अ बिजनेस इज नॉट क्लोज डाउन, when a business is not closed down due to retirement of a partner, death of a partner, or insolvency of a partner, or due to any other reasons. मैंने अभी अभी आपको समझाया था फ्रेंड्स. Dissolution of partnership is different compared to dissolution of partnership firm. Partnership firm में क्या होता है? Dissolution of partnership firm में क्या होता है फ्रेंड्स? सारे पार्टनर डिसॉल्व हो जाते हैं, मीन्स सारे पार्टनर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप business is not closed down. The relation between the partners is to be comes to an end. पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो किसी न किसी रीजन से खत्म हो जाता है, बट बिजनेस को कोई भी अफेक्ट नहीं होता. आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे सेम वर्ड्स लिखे हुए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, when business is not closed down due to retirement of a partner, death of a partner, insolvency of a partner, or due to any other reason, and the remaining partners keep business continue as it is, known as dissolution of partnership, right? See, when any partner is retire, or due to some reason if the partner has death, or somehow partner, one of the partner is leave the partnership from the very middle, so new partner will be added in the partnership firm and the partnership business is going on. It means there is no change in the partnership business. Business में कोई change नहीं हो रहा है फ्रेंड्स. आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? पार्टनर्स चेंज हो सकते हैं. X की जगह पे Y आ सकता है, Y की जगह पे Z आ सकता है, Z की जगह पे A आ सकता है, बट जो बिजनेस है, बिजनेस एंड नहीं हो रहा है, बिजनेस एज इट इज कंटिन्यू है. देयर इज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन अ बिजनेस ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से पार्टनरशिप बिजनेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता. यस और नो? Clear with this? So this is the meaning of dissolution of partnership. Now for more clarity, I will prepare one differentiation. मैंने एक differentiation prepare किया है जो next page पे दिया है. Please share the next page. आप यहाँ पे ये दो चीजें वो है, एक dissolution of partnership firm and second dissolution of partnership. See, you can see one by one. First, we will take dissolution of partnership. See, in dissolution of partnership, only partnership dissolution is to be happen. Means सिर्फ partnership का end होता है, partnership firm का end नहीं होता. अब आप राइट साइड में देख सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करें फ्रेंड्स, सो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देयर इज अ परमानेंट एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म का एंड हो जाता है. इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सी, once again in partnership the existence of firm remain continuous. मैंने अभी आपको रिसेंटली समझाया था दोस्तों कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच का रिलेशन डिसॉल्व होता है, बट पार्टनरशिप फर्म इट विल कंटिन्यू एज इट इज. ये चीज अपने माइंड में सेट रखना दोस्तों, बिकॉज ये चैप्टर की जो थियरी है ना, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्रेंड्स. व्हेन पार्टनरशिप इज टू बी डिसॉल्व, जब पार्टनर्स का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनरशिप फर्म को कोई अफेक्ट नहीं होता. इट विल रिमेन कंटिन्यू एज इट इज. यस और नो? बट फ्रेंड्स, व्हेन देयर इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, सो देयर इज द एंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म.
जब पार्टनरशिप फर्म का फ्रेंड्स डिसोल्यूशन होता है तो वहां पे जो फर्म का एग्जिस्टेंस है, जो फर्म का अस्तित्व है, वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, खत्म हो जाता है. Now you can see the next. In dissolution of partnership, books of account remain continuous. See, when there is a dissolution of partnership, जब सिर्फ partnership का dissolution होता है तो partners के जो भी books of account है that will remain as it is. Means the books of account will remain continue as it is. There is no changes in the books of account of the partnership. But friends, when there is a dissolution of partnership firm, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है फ्रेंड्स, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा, सो जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है पार्टनरशिप फर्म के, वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रेंड्स क्लोज हो जाएंगे. आई मीन टू से ऑल दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड फॉर परमानेंट basis, because now afterwards partnership firm cannot be continue. Now you can see the last point. Number of accounts are settled. No accounts are settled, but profit or loss arise due to revaluation is credited or debited respectively to partner's capital account. See friends, when there is the dissolution of partnership, जब partnership का dissolution होता है, so जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इट मींस जब कभी भी पार्टनरशिप खत्म होगा, तो पार्टनरशिप जब भी खत्म होगा उस टाइम पे सारे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का हिस्सा या लॉस में अपना कंट्रीब्यूशन दे करके अपने पार्टनरशिप रिलेशन को क्या करेंगे, एंड करेंगे. बट when there is a dissolution of partnership firm, but जब फ्रेंड्स पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा, सो सारे अकाउंट्स हमें सेटल करने होंगे. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ऑल अकाउंट्स आर सेटल्ड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट. जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा, जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा, तो हम वहां पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे फ्रेंड्स. वहां पे हम सबसे पहले बिजनेस के जितने भी एसेट्स है उन्हें सेल करेंगे, और एसेट्स को सेल करने के बाद जो भी पैसा रियलाइज होता है उस पैसे से हम बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटीज है उन लायबिलिटीज को पे करेंगे, और उसके बाद जो भी पैसा बचता है उस पैसे को हम पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. When there is the dissolution of partnership firm, जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. अब आप ऐसा सोच रहे हो कि सर ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, दैट आई विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन. बट अभी मैं आपको एक चीज समझा दूं. रियलाइजेशन अकाउंट, इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट. रियलाइजेशन अकाउंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह एक अकाउंट है. अब आप सबको ये तो पता ही होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है. 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट में एक अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो फ्रेंड्स, रियलाइजेशन अकाउंट भी कुछ ऐसा ही अकाउंट होता है. सो ये अकाउंट हम कब प्रिपेयर करेंगे, जब पार्टनरशिप फर्म एंड होगा, जब पार्टनरशिप फर्म क्लोज होगा, तब हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और इस अकाउंट में सारे एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करके हम उसको सेल करेंगे. और जब ये एसेट्स और एसेट्स सोल्ड होगा, उस एसेट्स को सेल करके जो भी पैसा हम रियलाइज करेंगे उस पैसे से हम बिजनेस की सारी लायबिलिटीज क्या करेंगे, पे करेंगे. और फाइनली जो भी अमाउंट बचता है वो अमाउंट हम सारे पार्ट्स के बीच में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दिस इज कॉल्ड अकाउंट्स आर टू बी सेटल्ड. इट इज कॉल्ड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स. So friends, this is the difference between dissolution of partners and dissolution of partnership firm. I think एक और थोड़ा सा difference रह जा रहा है. Please share the next page. Accounts of outgoing partners are settled. Friends, जब dissolution of partnership की मैं बात करूं, जब पार्टनरशिप के बीच का रिलेशन स्पॉइल होता है या पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होता है, तो जो भी पार्टनर किसी भी रीजन से पार्टनरशिप छोड़ करके जा रहा है, तब हम उस पार्टनर का पर्टिकुलर अकाउंट क्या करेंगे, सेटल्ड करेंगे. एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अगर मैं बात करूं, तो जब कभी भी
पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होता है, सो हमें कोर्ट का इंटरफेरेंस उसमें होता है। मीन्स जब कभी भी हम पार्टनरशिप फॉर्म एंड होगा, यानी पार्टनरशिप फॉर्म जब बंद होगा, तो वहां पे हमें पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करने के लिए, यानी कि क्लोज करने के लिए कोर्ट की इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पार्टनरशिप में इट इज वॉलंटरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कभी कभार अगर पार्टनर्स के बीच के रिलेशन अच्छे नहीं है, उनके बीच की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो वो वॉलंटरीली अपने रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकते हैं। मीन्स पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन पॉसिबल वॉलंटरीली हो सकता है। बट सपोज अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, सो देयर इज अ ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व। आप एक चीज समझो फ्रेंड्स, अगर मान लो एक्स वाई और जेड तीनों के बीच के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो कोई भी पार्टनर बीच में से पार्टनर को छोड़ करके जा सकता है। इससे पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, बट पार्टनरशिप बिजनेस बंद नहीं होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मान लो कि तीनों पार्टनर, कोई एक पार्टनर का बाकी के पार्टनर्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, या उसका बिजनेस में मन नहीं लग रहा है, या उसको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह से उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो वो बीच में से अपना पार्टनरशिप रिलेशन स्पॉइल करके जा सकता है। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट फ्रेंड्स, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, अगर पार्टनरशिप फर्म ही अगर बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, तो पार्टनरशिप के बीच का रिलेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। अब आप लास्ट पॉइंट देख सकते हो फ्रेंड्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में देयर मे नॉट बी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इस पॉइंट के बेस पे काफी बार ट्रू एंड फॉल्स का स्टेटमेंट पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक चीज अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना, शायद आपका 1 मार्क्स इस स्टेटमेंट से आ जाए। बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से पार्टनरशिप फॉर्म कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। प्लीज लिसन टू बी वेरी केयरफुली। ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म कैन नॉट बी डिसॉल्व। पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से पार्टनरशिप फॉर्म कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, बट पार्टनरशिप फॉर्म के डिसॉल्व होने से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व नहीं होता, बट पार्टनरशिप फॉर्म के डिसॉल्व हो जाने से पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। देयर इज अ ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। So this is a very famous statement which is frequently asked in the board examination. So please read this difference twice and thrice. I will share this